فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 34 ہے۔ پہنچ چکے ہیں ہم صفحہ نمبر 762 پہ، اور فصل کا عنوان ہے اللباس یعنی لباس۔ 3548 اس کا نمبر شمار ہے۔ لباس کا موضوع نمبر 1 ہے۔ عربی میں ہیڈنگ دی گئی ہے اللباس یعنی لباس۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہارے ستر کو چھپاتی ہے، اور زینت کے کپڑے اور پرہیزگاری کا لباس۔ اگلی سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 ہے۔ تم لوگ دونوں سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 ہے۔ لباس کے سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17761 پہ اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑوں کو پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے بہترین لباس ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن دیا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الترغیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 87 ہے۔ ابو داؤد نے، ترمذی اور ابن حبان نے بھی روایت کی ہے، اور کنز کی یہ جلد نمبر 41102 ہے۔ 17762 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: اللہ تمہیں قبور اور مساجد میں سفید لباس میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ الترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث 17763 پر تمہارے کپڑوں میں سے اللہ تعالیٰ سفید کپڑوں کو پسند کرتا ہے، بس اسی میں نماز پڑھا کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز العمال کی جلد نمبر 41117 ہے۔ 17764 پہ حدیث کا ترجمہ: سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اور اپنے مردوں کو اسی کا کفن دیا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فروع کافی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 44 ہے۔ اسی طرح سے کنز العمال کی جلد نمبر 41101 ہے۔ اگلی حدیث 17765 پہ سوتی لباس پہنا کرو کیونکہ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا لباس ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 446 ہے۔ 17766 پہ لباس سوتی پہنا کرو کیونکہ یہ رسول اللہ اور ہمارا لباس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص وجہ کے بغیر کبھی اونی اور ریشمی لباس نہیں پہنتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 450 ہے۔ 17767 پہ سوت بھی انبیاء کا لباس ہے، یہ گوشت کے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے، اور صفحہ نمبر 449 ہے۔ 3549 پہ لباس کے سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے، ملبسہم الاقتصاد یعنی میانہ روی کا لباس۔ اس سلسلے میں 17768 پہ حدیث کا ترجمہ: متقین کے اوصاف میں فرمایا ان کی گفتگو جچی تلی اور پہناوا میانہ روی کا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ 17769 پہ حدیث کا ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی
हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर उस हालत में फिरौन के पास आए कि इनके जिस्म पर ऊनी कुर्ते और हाथों में लाठियां थीं। इससे ये कौलो करार किया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसका मुल्क भी बाकी रहेगा और इज्जत भी बाकी रहेगी। तो उसने अपने हाशिया नशीनों से कहा, तुमको इन पर ताज्जुब नहीं होता कि दोनों मुझसे ये मामला ठहरा रहे हैं कि मेरी इज्जत भी बरकरार रहेगी और मुल्क भी बाकी रहेगा, जबकि ये खुद तंगदस्ती और जलील सूरत में है जो तुम देख रहे हो। अगर इनमें इतना ही दमखम था तो फिर इनके हाथों में सोने के कंगन क्यों नहीं पड़े हुए? ये इसलिए कि वो सोने को और उसकी जमा आवरी को बड़ी चीज समझता था और बालों से बने हुए कपड़ों को हकारत की निगाह से देखता था। हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 192। 1770 पे हदीस का तर्जुमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के औसाफ में फरमाया, अगर चाहो तो ईसा बिन मरियम का हाल कहूँ, जो सर के नीचे पत्थर का तकिया रखते थे और सख्त खुरदरा लिबास पहनते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 160। 17771 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में फरमाया, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, गुलामों की तरह बैठते थे, अपने हाथ ही से अपनी जूठी गांठते थे और अपने हाथों से कपड़ों में पैबंद लगाते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 160। 17772 मैं मोटा लिबास पहनता हूँ, जमीन पे बैठता हूँ, खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटता हूँ, जीन के बगैर गधे पर सवार होता हूँ और अपने पीछे किसी को बिठा भी लेता हूँ। बस जो शख्स मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझ में से नहीं है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 80। 17773 पर जो हदीस है, ए अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सख्त और खुरदरा और मोटा लिबास पहना करो ताकि तुम्हारे अंदर गरूर ना पलने पाए। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 है और सफ़ा नंबर 91 है। 17774 पे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुतबा दिया। उस वक्त आपके जिस्म पर खद्दर का एक बोसीदा और पैबंददार जामा था। आप अलैहिस्सलाम से इसके बारे में कहा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे दिल मुतवाज़े होता है और मोमिन इसकी ताशी करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 79 है और सफ़ा नंबर 312 है। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक बोसीदा और पैबंददार जामा देखा गया तो आप अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे दिल मुतवाज़े, नफ्स मुती होता है और मोमिन इसी की ताशी करते हैं। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 79 है और सफ़ा नंबर 313 है। 17775 पर हदीस का तर्जुमा। उक़बा बिन अलक़मा कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आपके सामने खट्टा दूध रखा हुआ था जिसकी तुर्श बू मैं बर्दाश्त न कर सका। साथ ही रोटी के कुछ सूखे टुकड़े भी थे। ये देख के मैंने दरियाफ्त किया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम यही ग़िज़ा खाते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबुल जलूद, मैंने तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे भी ज्यादा खुश टुकड़े खाते और इससे ज्यादा खुरदरा और सख्त लिबास पहने देखा है। लिहाजा अगर मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इख्तियार नहीं करूंगा तो अंदेशा है कि मैं इन तक नहीं पहुंच सकूंगा। बिहारुल अनवार की ये जिल्द नंबर 79 सफ़ा नंबर 314 है। 17776 पे हदीस। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह के लिबास पहनने से रोका है। एक तो वो जो खूबसूरती और ज़ेबाई में मशहूर और दूसरा वो जो बुराई और खराबी में मशहूर हो। कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 4168।
1777 पर हदीस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की शोहरत के हामिल कपड़ों से रोका है, एक वो जो निहायत ही बारीक होता है और दूसरे वो जो निहायत ही मोटा हो। इसी तरह जो सख्ती और नरमी नीज लंबाई और कोताही में मशहूर है, लिहाजा बेहतर है कि इन दो सिफात के दरमियान की सिफ्त का इंतखाब किया जाए। कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 41172 1778 पर हदीस माल अल्लाह का है जिसे अल्लाह ने इंसान के पास अमानत के तौर पे रखा है और इसे सिर्फ इस हद तक इजाजत दी है कि इससे दरमियानी कैफियत का खाना खाए और दरमियानी सिफ्त का लिबास पहने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 79 सफ़ा नंबर 304। 1779 पर हदीस का तर्जुमा, ऐसा लिबास पहनो जिससे ना तुम्हारी शोहरत हो और ना ही शिकायत हो। कौल मुअल्लिफ मुलाहिजा हो बाब शोहरत, लिबास और इबादत की शोहरत। अगले मौजू की तरफ चलते हैं। 3550 पे अगला मौजू है और लिबास के सिलसिले का मौजू नंबर 3 है। अरबी में इसकी हेडिंग है खैर और लिबास कुल्ले ज़मानिन लिबासो अहलिही, यानी बेहतरीन लिबास। 1780 पर हदीस का तर्जुमा, हम्माद बिन उस्मान कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में शर्फयाब हुआ। उस वक्त एक शख्स ने हज़रत से कहा जनाब अलैहिस्सलाम से कहा, खुदा आपका भला करे। आप अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मोटा और खुदरा लिबास ज़ेबतन फरमाते थे जिसके एक पहनने की कीमत सिर्फ 4 दिरहम होती थी वगैरह, लेकिन आप खुद इस कदर उम्दा जामा ज़ेब बदन किए हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ऐसा लिबास उस वक्त ज़ेबतन करते थे जिसे नापसंद नहीं समझा जाता था। अगर वही लिबास वो आज पहन ले तो अंगुश्त नुमाई होगी। लिहाजा हर दौर का बेहतरीन लिबास वही होता है जो उस जमाने वाले इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता जब हमारे कायम आले मोहम्मद अल्लाह फरजहू ज़हूर फरमाएंगे तो अली अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहनेंगे और इन्हीं की सीरत पर चलेंगे। फरोए काफी की जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 444 है। 1781 पर हदीस का तर्जुमा, बुरीद बिन माविया कहते हैं कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उबैद बिन ज़ियाद से फरमाया, खुदा की नेमतों का इजहार खुदा को ज्यादा पसंद है इस बात से कि इन्हें छुपाया जाए, लिहाजा तुम्हें भी अपनी कौम में मुरव्वज बेहतरीन लिबास पहनना चाहिए। रावी का बयान है कि इसके बाद उबैद मरते दम तक अपनी कौम में मुरव्वज बेहतरीन लिबास पहनते रहे। वसाइल शिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 342। 1782 पे हदीस का तर्जुमा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिबास का तज़किरा करने के बाद फरमाया, लिबास तो इसी किस्म का पहनना चाहिए, लेकिन इस दौर में हम नहीं पहन सकते क्योंकि अगर हम पहनने लगे तो लोग या तो कहेंगे ये दीवाना या कहेंगे कि रियाकार है। अलबत्ता जब कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो ऐसा लिबास ज़ेबतन करेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 79 सफ़ा नंबर 314। 1783 पर हदीस का तर्जुमा, मैं तवाफ में मसरूफ था कि एक शख्स ने मेरा कपड़ा खींचना शुरू किया। जब मैंने मुड़ कर देखा तो वो अब्बाद बसरी था। उसने कहा, ए जाफिर बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुकाम मर्तबे पर होते हुए ऐसे कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा, अफसोस है तुझ पर, ये कुर्बान के देहात कोहिस्तान का तैयार करदा कपड़ा है जिसे मैंने एक दिरहम से कुछ ज्यादा के अवज़ खरीदा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक ऐसे ज़माने में थे जिसमें आप जैसा भी लिबास पहनते वो उनके मुनासिब हाल होता था, और अगर मैं आज के दौर में उन जैसा लिबास पहनने लगूं तो लोग कहेंगे ये अब्बाद बसरी की तरह रियाकार है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 79 सफ़ा नंबर 315 है, सफ़ा नंबर 308 है। वसाइल शिया की जिल्द नंबर 3 है,
صفحہ نمبر 347 ہے، فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 443 ہے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں 17784 پہ۔ میرے کمزور عقیدے کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عقیدے کے دوست اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں بوریے پر بیٹھوں اور موٹا لباس پہنوں، جبکہ یہ دور اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امام رضا علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 79 ہے، صفحہ نمبر 349 ہے۔ 17785 پہ معمر بن خلاد کہتے ہیں میں نے حضرت ابو الحسن یعنی امام رضا علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، بخدا اگر میں بھی اسی دور میں ہوتا تو میں بھی عمدہ غذا کی بجائے سادہ غذا کھاتا، نرم کپڑے کی بجائے کھردرا لباس پہنتا اور راحت کے بجائے سختی اٹھاتا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 314۔ 17786 پر حدیث پڑھتے ہیں۔ احمد بن محمد بن ابی نصر کہتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اچھے اور عمدہ لباس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام عمدہ لباس پہنتے تھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نیا کپڑا خرید کر اسے پانی میں بھگونے کا حکم دیتے تھے۔ اس پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اور زیبا لباس پہنا کرو، کیونکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام موسم سرما میں 500 درہم کا ملائم پشمی کرتا اور 50 دینار ملائم پشمی چادر زیبتن فرمایا کرتے تھے۔ جب سردیوں کا موسم گزر جاتا تو اسے آپ فروخت کر کے اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے کی پاک و پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دی؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 پہ ہے۔ 17787 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا آپ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موٹا اور کھردرا لباس پہنتے تھے، جبکہ آپ نے تو کوہستانی اور عمدہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تنگی کے زمانے میں زندہ تھے، اب جبکہ وہ دور نہیں رہا اور تنگی ختم ہو چکی ہے، اس لیے زمانے کے نیک لوگ ایسا لباس پہننے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 309 اور صفحہ نمبر 315۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب جمال، خدا جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے، نیز باب تواضع، بلندی پر فائز ہونے کے باوجود تواضع۔ اگلا موضوع ہے 3550 اور موضوع نمبر ہے اس سلسلے کا موضوع نمبر 4 ھذا للہ و ھذا لکم، خدا کی خوشنودی اور بندوں کی خوشنودی۔ 17788 پر حدیث کا ترجمہ ابی عباد کہتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام گرمیوں میں چٹائی پر اور سردیوں میں غالیچہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ لباس موٹا ہوتا تھا لیکن جب باہر لوگوں میں تشریف لے جاتے تو زینت کر کے جاتے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 222۔ 17789 پہ حدیث کا ترجمہ روایت میں ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اونی لباس کے اوپر ملائم پشمی لباس زیبتن فرمایا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک جاہل صوفی نے جب آپ کا ملائم پشمی لباس دیکھا تو کہنے لگا آپ خود کو یہ کیسے گمان کرتے ہیں کہ آپ زاہد ہیں جبکہ ہم آپ کو نعمتوں بھرے ملائم پشمی لباس میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر امام رضا نے اندرونی لباس ظاہر فرمایا، انہوں نے دیکھا تو وہ اونی لباس ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا یہ اندرونی لباس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے اور یہ اوپر والا لباس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ پھر آپ نے صفان ثوری کے اوپر والا لباس ہٹایا جو سخت کھردرا تھا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 83 اور صفحہ نمبر 222 ہے۔ اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔
1790 पे कामिल बिन इब्राहिम कहते हैं कि मैं अपने मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इन्हें सफ़ेद व मुलायम लिबास में देखा। मैंने दिल में कहा, खुदा का वली और उसकी हुज्जत खुद तो मुलायम लिबास पहने मगर हमें अपने मोमिन भाइयों के साथ हमदर्दी का हुक्म दे और उस जैसा लिबास पहनने से मना करे। इस पर हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, कामिल। फिर अपनी आस्तीनें उलट कर दिखाया तो मैंने देखा कि स्याह खुरदरे टाट का लिबास आपकी जिल्द से पैबस्त था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अंदरूनी लिबास अल्लाह की रज़ा के लिए है और बैरूनी लिबास तुम लोगों के वास्ते है। ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 79 है। सफ़ा नंबर 302 है। वसाइल शिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 351 है। 17791 पर हदीस। अब ये जो हदीस शुरू हो रही है ये सुफियान सौरी से मुताल्लिक़ है। जी, ये मुफस्सल हदीस है। आए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। एक मर्दा सुफियान सौरी मस्जिदुल हराम से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत कीमती लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं। इस पर उन्होंने कहा, बाखुदा मैं अभी उनके पास जाकर इस बात की सरजनिश करता हूँ। चुनाचे आपके पास जाकर कहा, फर्जंदे रसूल, ऐसा लिबास ना तो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेबतन किया और ना ही अली अलैहिस्सलाम ने और ना उनकी किसी औलाद ने पहना। ये सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत रसूल खुदा सख्त मुश्किल और कठिन मुआशी दौर में रह रहे थे और इस मुश्किल और अपने इक़्तिदार की वजह से वो ऐसा लिबास ज़ेबतन फरमाया करते थे जो एक दौर से मुताबिकत रखता था, लेकिन उसके बाद दुनिया की शिद्दत में नरमी आ गई और इससे फ़ायदा उठाने के ज़्यादा मुस्तहिक खुदा के नेक बंदे हैं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत तलावत फरमाई, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि ज़ीनत के साजो सामान और खाने की पाको पाकीज़ा चीज़ें खुदा ने अपने बंदों के वास्ते पैदा की हैं, किसने हराम कर दी। सूरह एराफ। लिहाजा अहम लोग खुदा की इस बख्शिश के ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा हम लोग खुदा की इस बख्शिश के ज्यादा हकदार हैं। ए सोरी, तुम जो मुझ पर ये लिबास देख रहे हो ये मैंने उन लोगों के लिए पहन रखा है। इसके बाद आपने सुफियान का हाथ अपनी तरफ खींचा और ऊपर के कपड़े को उलटकर अंदर से कपड़े को जाहिर किया जो सख्त और जिल्द से चिमटा हुआ था। फरमाया, ये लिबास मैं अपने नफ्स को ज़ेर करने के लिए पहना हुआ है। ये लिबास मैंने अपने नफ्स को ज़ेर करने के लिए पहना हुआ है और जो तुमने देखा है वो लोगों के वास्ते है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सुफियान सौरी के ऊपर वाला लिबास हटाया जो सख्त खुरदरा और मोटा था, जबकि उसने अंदर नर्म और नाजुक लिबास पहना हुआ था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊपर का मोटा लिबास लोगों को दिखावे के लिए और उसके अंदर का लिबास अपने नफ्स को खुश करने के लिए पहना हुआ है। फरोए काफी की जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 443 है। अगले मौजू पर आ जाए। लिबास के सिलसिले का मौजू नंबर 5 है और नंबर शुमार है मौजू का 3552। अल इमामा यानी अमामा। अमामा के सिलसिले में आए अहादीस शरीफ का मुताला करते हैं। 17792 पर अमामा अरबों का ताज है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरोए काफी की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 461 है। कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 41132। 17793 पर हदीस का तर्जुमा पढ़ते हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से इस तरह अमामा बांधा कि पगड़ी का एक हिस्सा सामने की तरफ ज्यादा खुला छोड़ा और पीछे की तरफ 4 उंगली के बराबर हिस्सा लटकाया। फिर फरमाया, अली अलैहिस्सलाम मुंह इधर करो। उन्होंने अपना मुंह इधर कर लिया। फिर फरमाया, रुख उधर करो। उन्होंने रुख उधर किया। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलाइका के ताज ऐसे ही है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरोए काफी की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 461 है। 17794 पे हदीस का तर्जुमा, जंगे बदर के दिन मलाइका के सर पर सफेद
लटके हुए अमामे थे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरोए काफ़ी की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 461 17795 पर हदीस का तर्जुमा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल हुए तो उस वक्त आपके सर पर स्याह अमामा था। सुनन अबी दाऊद है हदीस नंबर 4076। 17796 पे उम्र बिन हदीस अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत रसूल खुदा को मिंबर पर इस हालत में देखा कि आपके सर पर स्याह अमामा था जिसका एक किनारा आपके दोनों कांधों के दरमियान था। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4077। 17797 पर हदीस का तर्जुमा। आस्तीने चढ़ाए और सर पर अमामा बांधे मस्जिदों में आया करो क्योंकि अमामा मुसलमानों का ताज है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस है 41143। 17798 पर हदीस का तर्जुमा। अमामा मोमिनों का वक़ार और अरबों की इज्जत है। जब अरब अमामा अपने सरों से उतार देंगे तो इनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल की हदीस नंबर 4114 है। 17799 पे हदीस अल्लाह ताला ने बद्र हुनैन की लड़ाई के दिनों में मलाइका के जरिए मेरी मदद की जो इस तरह के अमामे बांधे हुए थे। अमामा यकीनन कुफ्र और ईमान के दरमियान एक हद फासिल है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 41141। 17800 टोपियों पर बांधे हुए अमामे हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क की हैसियत रखते हैं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 41142। 17801 पे मेरी उम्मत जब तक टोपी पर अमामे बांधती रहेगी उस वक्त तक इस्लामी फितरत पर कायम रहेगी। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 41148। 17802 पर हदीस का तर्जुमा। दिन के वक्त सर को ढांपे रखना समझदारी है और रात के वक्त ढांपना शक और तोहमत का सबब होता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 41144। अगला मौजू है 3553 पर लिबास के सिलसिले का मौजू नंबर 6 अल-बिसतुल ममनूअतु यानी ममनुआ लिबास। इस सिलसिले में कुरान मजीद की सूरह फातिर की आयत नंबर 33 का तर्जुमा पढ़ते हैं। और इन्हें वहाँ जन्नत में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और वहाँ इनकी मामूल की पोशाक खालिस रेशमी होगी। अगली सूरत सूरह दुखान की आयत नंबर 53 है। रेशम की कभी बारी और कभी दबीस पोशाक पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। कौले मुअल्लिफ इस बारे में आयत के लिए मुलाहिजा हो सूरह कहफ की आयत नंबर 31 और सूरह हज की आयत नंबर 23। इस सिलसिले में जो अहादीस शरीफ हैं उनका मुताला करते हैं। 17803 पर अगर तुम जन्नत के जेवरात और लिबास और रेशम का लिबास पहनना चाहते हो तो इसे दुनिया में इस्तेमाल न। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल की हदीस नंबर 41209 है। 17804 पे जो शख्स दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में इससे महरूम होगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल तरगीब और तरगीब है जिल्द नंबर 3 है सफ़ा नंबर 96 है। इसे बुखारी मुस्लिम और इब्ने माजा ने भी रिवायत किया है। 17805 पर हदीस जो अयाम अल्लाह यानी क़यामत की उम्मीद रखते हैं उसे रेशम से इस्तिफादा नहीं करना चाहिए यानी रेशमी लिबास नहीं पहनना चाहिए। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल तरगीब और तरगीब है जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 97 है। 17806 पे हदीस रेशम और सोने का लिबास मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम और औरतों पर हलाल है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 41210। 17807 पे हदीस मर्दों को जंग के अलावा हरीरो दीबा का लिबास पहनना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरोए काफी की जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 453 है। 17808 पे हदीस का तर्जुमा।
تمہیں باریک لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ جس کا لباس باریک ہوگا اس کا دین بھی پتلا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 184، رسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ نمبر 357۔ 17809 پہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت ان کے بدن پر باریک لباس تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے ان اعضاء کے علاوہ کوئی اور عضو بدن دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ 17810 پہ حدیث کا ترجمہ، جو شخص اس بات سے کوئی لباس پہنے کہ لوگوں پر فخر کرے اور لوگ اس کی طرف دیکھیں تو جب تک اسے اتارے گا نہیں اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 41203۔ 17811 پہ حدیث، جو شخص اس مقصد کی خاطر کوئی کپڑا لیتا ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں پر فخر کرے اور لوگ اس کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جب تک وہ اسے اتار نہ دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث 41200۔ 17812 پہ جو شخص شہرت کا حامل لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے رخ موڑ لے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث 41202۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب تکبر کی حقیقت حدیث 17246۔ اگلا صفحہ 782 پر جو فصل ہے فصل نمبر 45 ہے اور عنوان ہے الجاج یعنی لجاجت، اور لجاجت میں جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ ہے ہٹ دھرمی۔ 3554 اس کا نمبر شمار ہے اور ہٹ دھرمی کے سلسلے میں ایک ہی موضوع ہے۔ آئے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللجاجتا یعنی ہٹ دھرمی۔ 17813 پر خیر عادت ہے اور شر لجاجت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ المعجم 17814 پہ ضد اور ہٹ دھرمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 341 ہے اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 179 ہے۔ 17815 پر حدیث ضدی اور ہر دھرم کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ باقی بھی جو احادیث ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی ہے اور میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ 17816 پہ ہر دھرمی صحیح رائے کو خراب کر دیتی ہے۔ 17817 پہ ضدی اور ہر دھرم آدمی کی کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ 17818 پہ لجاجت اور ضد برائی کا بیج ہے۔ 17819 پہ ہر دھرمی نفس کو ابداع کر دیتی ہے۔ 17820 پہ ہر دھرمی جنگوں کا موجب بنتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر دیتی ہے۔ 17821 پہ ہر دھرمی جنگوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ 17822 پر ہر دھرمی قابل مذمت ہے، اس سے اجتناب کرو کیونکہ یہ جنگوں کا باعث ہوتی ہے۔ 17823 پر دنیا اور آخرت کے لیے ہر دھرمی کی سب سے زیادہ مضر شے ہے۔ 17824 پہ ہر دھرمی انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے جسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 17825 پہ ہر دھرمی کے گھوڑے پہ سوار شخص بلاؤں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام احادیث جو ابھی میں نے پڑھی یہ سب کی سب مولا علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے لی گئی تھی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ 17826 پہ ہر دھرمی کی سرکشی پہ سوار ہونے سے بچتے رہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے۔ 17827 پہ خبردار ہر دھرمی کی سواری پہ سوار نہ ہونا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 341، نہج البلاغہ مکتوب 31۔ 17828 پہ حدیث ضد اور ہر دھرمی کی سواری سے بڑھ کر کوئی سواری سرکش نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔
17,8-9 पे हर धर्मी से दूर रहोगे तो ठोकरों से महफूज रहोगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 10। 17,830 पे हर धर्मी ऐसी सवारी है जो अपने सवार समेत ठोकरें खाती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुरूरुल हिकम। 17,831 पे किसी को हद से ज्यादा मलामत करना उसके लिए हर धर्मी की आग को भड़काना है। हजरत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 77 है, सफ़ा नंबर 212 है। 17,832 पे हदीस हर धर्मी हरगिज न करो क्योंकि इसका आगाज जहालत से होता है और अंजाम पशेमानी पर। हजरत अली अलैहिस्सलाम तोहफाउल अक़ूल है, सफ़ा नंबर 18 है। 17,833 पे हदीस बेहतरीन इखलाक वो होता है जो हर धर्मी से दूर हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुरूरुल हिकम। अगली हदीस भी मौला अली अलैहिस्सलाम की गुरूरुल हिकम से ली गई है। 17,834 पे हर धर्मी और कजलहजी बुराइयों का मजमुआ है। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुरूरुल हिकम। 17,835 पे जो हर धर्मी से गुमराही में धंसता जाएगा वो अहद शिकन होगा जिसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी होगी और जमाने के हवादिस इसके सर पर मंडलाते रहेंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा मकतूब 58। 17,836 पर हदीस देखो वक्त से पहले किसी काम में जल्दबाजी से काम ना लो, जब उसका मौका आ जाए फिर कमजोरी ना दिखाओ, जब सही सूरत समझ में ना आए तो इस पर हर धर्मी से काम ना लो, जब तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो फिर सुस्ती ना करो, गर्ज ये कि हर चीज को इसकी जगह पर रखो। हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा मकतूब 53। 17,837 पे हर धर्मी और जिद का नतीजा हलाकत है। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुरूरुल हिकम। फसल नंबर 46 है और उसका उन्वान है अल-लहिया यानी दाढ़ी। अल-लहिया 355 इसका नंबर शुमार है और इसका मौजू एक ही इसका मौजू है अल-लहिया यानी दाढ़ी। 17,838 पर मूछे मुंडाओ, दाढ़ी बढ़ाओ और यहूदियों की मुशाबहत इख्तियार ना करो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 76 सफ़ा नंबर 112 वसाइल शिया जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर 423 है। 17,839 पे हदीस का तर्जुमा यहूदी अपनी दाढ़ी कटाते और मूछे बढ़ाते हैं जबकि हम मूछे और दाढ़ी दोनों कटवाते हैं और यही दीन फितरत है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 76 सफ़ा नंबर 112 वसाइल शिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 423। 17,840 पे हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रसूल पाक से रिवायत करते हैं कि हज़रत ने फरमाया मूछे मुंडाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 222। 17,841 पे हदीस का तर्जुमा मुशरिकीन की मुखालफत करो लिहाजा मूछे मुंडाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा 222 हदीस 54। अब हम इस पार्ट का यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं। किताब मिज़ानुल हिकमत जिल्द नंबर 8 अभी जारी है।